Principal Dr. Jyoti Pohane Madam, Vice Principal Dr. Shendra Sir, teachers from various colleges, my dear colleagues, and those who are attending the webinar live through YouTube link. Our college organizes various activities as and now presently webinars in stressful lockdown situation. BSc department has taken an initiative during this lockdown period. We have conducted 3 online quiz, 2 webinars and 3 more upcoming. For that, BSc faculties are taking much more efforts. So, today's topic is about realization the impact of our breath and stress-free living. Our resource person will guide regarding how to balance our mental situation, relax, rejuvenate and rejoice. Now, I request Snell ma'am for Saraswati Vandana. Yes. Snell madam. Yes. Okay, thank you, madam. Okay. Proceed with this. I request our principal madam to say few words on this occasion. Thank you, Rupali madam. Good morning, everybody. On behalf of Thane Jilla Shikshan Agri Prasarak Mandal, I welcome all the dignitaries, the participants. I welcome our today's guest, Rashmin Pulekar sir, and all my colleagues for this webinar on एखाद्या वेळेस आता So I want to hello, I want to request all of you, if you are not talking, then please keep yourself muted
अगर आप अपने आप को म्यूट करके रखें तो जो भी स्पीकर है आप उनको सुन पाएंगे. Rupali ji, are you there? Yeah, I'm here. Voice is not clear. Should we start now? Yes, yes. Madam, I am introducing the speaker. Okay. Yeah. So Rashmin Purekar sir, he is International Art of Living faculty and TEDx speaker. He is the trainer for the trainers and FID rated chess player. He is known to create a celebrative atmosphere wherever he goes. Rashmin sir got introduced to the art of living during his college times at the young age of 18, and in the past 17 years, he has taught the art of living programs to various sections of the society, ranging from slum dwellers, prison inmates, villagers, refugees, school children, college youth, householders, to corporate business houses, scientists, and grandmasters. Introduced to chess at the age of 4, Sir has successful in this also. He started professionally playing chess at 15, and at 17 he received the prestigious FID rating as an international chess player. Rashmin sir captained the Mumbai University to winning the gold medal in All India Inter-University Chess Championship twice in succession in 1996 and in 1997. And he has also represented Western Railways for 2 years. He has taught the art of meditation to chess grandmasters, namely Surya Shekhar Ganguly, P. Harikrishnan, and Dronavli Harika. He has also organized workshops and webinars delivering the training. He is close to his 13,500 hours of training. He has conducted over 1950 workshops and seminars within India and abroad, reaching out to an audience of over 1,20,000 participants. The trainer, Rashmin sir conducts higher level programs of art of living, including the leadership training programs, executive corporate training programs, and institution process program. His instant connect to the youth has been his sport, which in 2008 got him invited to Brussels, Belgium, and to train young participating leaders of the World Youth Forum, representing 15 countries of Europe. Sir has also been invited to conduct the Art of Living program in Scandinavian countries, Norway and Sweden. Not corporate houses such as IIM Bangalore, IIT Bombay, IIT Chennai, and so many big multinational companies. He is also socially very active. He has led large-scale events mobilizing the youth during the Silver Jubilee celebration of Art of Living in 2006 at Bangalore and World Culture Festival 2011 in Berlin, and for Volunteer for Better India 2013. He has organized large youth events such as Yuva Ratri and Utsav comprising over 10,000 youth. He is a mesmerizing storyteller and TEDx motivational speaker. So today we have Rashmin sir with us. I once again welcome him for this stress-free teaching and living, and I request him to guide all the delegates. It's over to you, sir. Rashmin Bhaiya, can you hear us? Can you unmute yourself? Yes. Thank you, Principal Madam, for this introduction. और पहले शुरू करने के पहले ये पहले जानेंगे कि आपको कौन सी भाषा में हिंदी, मराठी, इंग्लिश ये 3 भाषा बोल सकते हैं. Sir, Hindi will be preferable हिंदी. as we have participants from various sections. Okay. ठीक.
तो बाकी सब लोग म्यूट करेंगे तो अच्छा रहेगा. So, Principal Madam, before we proceed, I just want to ask कि if this slide, if we can remove and we can get Yes, yes. Rashmin Bhaiya in the center. Yeah. Okay. Okay. So good morning everyone. और ये स्ट्रेस फ्री टीचिंग वर्कशॉप में सबका स्वागत है. तो अभी पहले हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग जो काम कर रहे हैं आप सब लोग, एक बहुत ही इट्स अ जॉब विद लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आपके सामने उस एज ग्रुप आ रहा है जो बहुत ही इम्प्रेशनेबल है माइंड में. ओके, सो योर वर्ड्स, द वे यू टीच, इट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड्स. ओके, तो नॉट जस्ट द इंफॉर्मेशन जो डिलीवर कर रहे हैं सिर्फ वो नहीं, लेकिन उसके साथ में हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनके आंखों के सामने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो जो युवा पीढ़ी आपके नजरों के सामने से हर साल गुजरती है, तो आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम भी कर रहे हैं हम लोग, आप खुद के लिए भी, एज अ प्रोफेशन के लिए, लेकिन समाज के लिए भी. तो ये टीचर को स्ट्रेस फ्री होना उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? क्योंकि देखो अभी आप अपने कॉलेज डेज को थोड़ा सा, हम लोग थोड़ा मेमोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे सेशन के शुरुआत में. तो आप क्या है ना, जो भी आपके आंसर्स हैं आप वो चैट पे लिख सकते हैं. हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि स्कूल स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में, आप जब स्कूल में थे या कॉलेज में थे, बहुत सारे टीचर्स के अंडर आपने पढ़ाई किया है. तो ऐसे एक टीचर को याद करें आप, जो जिससे आप जो आप पसंद नहीं करते थे. आपको लगता था अरे बाप रे, ये कब खत्म होगा लेक्चर. हाँ. तो पहले हम उसमें जाएंगे. देखो क्या हम सभी लोगों से सीखते हैं. कुछ लोगों से सीखते हैं क्या करना चाहिए, कुछ लोगों से सीखते हैं क्या नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? कुछ लोगों से सीखते हैं कि कैसे होना चाहिए, कुछ लोगों से सीखते हैं कैसे नहीं होना चाहिए. तो ऐसे कोई टीचर्स हैं या कोई पर्सनालिटीज है जिस जो आपके मन में मतलब वाज अ नॉन एक्सेप्टेंस था उनके लिए. इट्स नॉट दैट यू आपको नफरत थी उनसे, लेकिन एक नॉन एक्सेप्टेंस था. तो नॉन एक्सेप्टेंस क्यों था, उसके क्या रीजंस थे? वो टीचर का नाम वाम बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बताओ कि क्या क्वालिटीज थे जिसके वजह से आपको इतना मजा नहीं आता था उनके साथ. सो कैसे क्या है, कैन यू जस्ट चैट पे टाइप कर सकते हो आप? थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा सेशन तो मजा आएगा, तो इसलिए आप भी अपने आंसर्स टाइप कर सकते हैं. हाँ, रेस्पेक्ट तो सबको करते हैं हम लोग. मैं बोल रहा हूँ नॉन एक्सेप्टेंस की ये कुछ टीचर्स वे आर डेफिनेटली बेटर देन द अदर टीचर्स, नो. हाँ, पार्शियलिटी था, ठीक है, फेल्ट इंडिया पार्शियल. सम टीचर्स आर वेरी वेरी रेस्ट्रिक्टेड. ओके, स्लो टीचिंग. ठीक है, वो फास्ट नहीं थे, क्विक नहीं थे. व्हाट एल्स? ऑलवेज स्क्रीमिंग. वेरी स्ट्रिक्ट. हाँ, चिल्लाते बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, बोरिंग थे, स्टूडेंट्स को एंगेज नहीं करते थे, वेरी एंग्री ऑल द टाइम, वेरी वेरी खड़ूस. some didn't know their content well. हाँ, knowledge of the subject. Method of teaching was boring. Teaching quality not good. Scolding all the time. हाँ, couldn't reach students. English lecture था उनका सिखाना always bouncer. Rude. Interactive नहीं था, behavior अच्छा नहीं था. Okay. No voice modulation, very very strict.
इरिटेटेड हो जाते थे छोटी छोटी बातों में से. मी तर खूप मार खाल्लाय टीचर कडून. वैशाली कदम बोल रहे. अरोगंट, नॉट अप्रोचेबल. ठीक है, चलो ये इसका हम एक जिस्ट मिल गया आपने को. तो अभी क्विकली इसी फ्लो में हम मैं दूसरा क्वेश्चन भी पूछता हूँ, पॉजिटिव वाला. नो एक्सप्रेशन, जस्ट यूज्ड टू रीड. हाँ, पॉजिटिव वाला ये कि कुछ टीचर्स आपके मन में बहुत गहरा इंप्रेशन करके गए. हाँ, पॉजिटिव, वो इंस्पायरिंग, तो कुछ तो था उनके अंदर कि हम्म, तुम अभी भी उनको याद करते हो, मतलब. और तो उनके क्या क्वालिटीज थे? अंडरस्टैंडिंग थे, काइंड हार्टेड, pleasant personality, good friend also, approachable, motivator, very concerned, caring, attraction, friend, content, knowledge अच्छा था, सिखाने का तरीका very proper, strict थे लेकिन very emotional to students, made the class vibrant, attitude, delivery, discipline, look, okay, motivation, kind, supportive. तो सबसे पहले इंग्लिश टीचर वाज वेरी फ्रेंडली. तो दो चीजें हैं, देखो आप क्लियरली जो भी आंसर्स आ रहे हैं ना, एक जो हम लोग नॉर्मली कहते हैं डोमेन नॉलेज, तुम्हारा सब्जेक्ट का ग्रास्प क्या है और होल्ड क्या है, कितना अच्छा है, एक वो है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आई कैन एक्चुअली से थ्री थिंग्स. एक तो है तुम्हारा खुद का नॉलेज, जब भी वो टीचर आता है तभी पता चल जाता है कि हाँ, इसको बहुत जबरदस्त नॉलेज है सब्जेक्ट का, जो भी सिखा रहे हैं, तो इमीडिएटली रेस्पेक्ट आता है उसके लिए. और पता है कि चलो ये थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहेंगे तो भी हम सुन लेंगे इनको, बिकॉज इनको सब पता है. तो ये फर्स्ट होमवर्क तो हमारा है. ये तो आता एकेडमिक, तुम्हारा नॉलेज क्या है. दूसरा है, ये सेकंड और थर्ड चीज के बारे में हम थोड़ा आज ज्यादा बात करें. सेकंड है डिलीवरी कैसी, इंटरेक्टिव कितना रखते हैं, स्टाइल ऑफ टीचिंग कैसा है, मेथड ऑफ टीचिंग कैसा है. कुछ लोग में बहुत ज्यादा नॉलेज होता है लेकिन वो जो सिखाने की कला होती है ना, वो नहीं होती. तो टीचिंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड. यहाँ पे एक छोटा सा टिप देता हूं मैं. जैसे मैं 17 साल से कोर्सेस ही सिखा रहा हूँ और मैं तो यंगस्टर्स को योगा और प्राणायाम सिखाता हूँ. तो सोचो काफी चैलेंजिंग होता है. उनको जो परसीव करते आ रही है तो बोरिंग चीज है, बूढ़ा होने के बाद करने वाली चीज है, उस चीज को हम को इंटरेस्टिंग बना के उनको सिखाना पड़ता है. तो मैं दो चीजें जब भी बताओगे ना लोगों को, एक है जो सीख रहे हैं उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उससे क्या वेरी फायदा होने वाला है. अगर तुम मैथमेटिक्स सिखा रहे हो तो वो फाउंडेशन स्ट्रांग होने के बाद उनको आगे कितना बेनिफिट होगा करियर में, यू नो. ये उनको जब भी पता क्या होता है एज ए स्टूडेंट, उनका क्या फायदा है यार ये सिखा के, ये सीख के मैं तो ये करने नहीं वाला हूँ आगे जाके, ये एक डाउट होता है मन में. सो वन थिंग इज skillfully showing the students what is the benefit of learning this, first thing. Second thing is how to make it interesting. उसमें ये टिप हम लोग नॉर्मली देते हैं, हर एक व्यक्ति ना, कोई भी उम्र का हो, वो कहानियों से कनेक्ट करता है, स्टोरी से. तो मैंने ये देखा है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो उनका ज्ञान देने का जो स्टाइल था ना, इट वाज मेनली स्टोरी टेलिंग. देखो भागवत कथा होती है, कथा होती है तो सबको इंटरेस्ट आता है, स्टोरी सुनना है सबको, छोटे बच्चे को नहीं, बड़ों को भी स्टोरी सुनना होता है. और हम लोग क्या करते हैं, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, उसमें हम स्टोरी टेलिंग नहीं करते. अभी इकोनॉमिक्स भी अगर हो, लेकिन वो जो पर्सनालिटी होती है जिसने वो ढूंढ के निकाला, या न्यूटन्स ने कुछ फिजिक्स के लॉस ढूंढ के निकाले, न्यूटन के बारे में जितना मैं जानूंगा, कुछ स्टोरीज सुनूंगा उसके लाइफ की, मेरे को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगता है. एक साइकोलॉजी है, यू नो, इन एनी सब्जेक्ट.
you if you do little research, what about accounts also, somebody how it came, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री कि क्या हुआ था पहले, कैसे था, फिर वो कैसे डेवलप हुआ, वो डेवलप करने में किसने कंट्रीब्यूट किया, उस वो जो स्टोरी होती है ना, if the first normally what they used to do in the first class they would always tell the story, वो स्टोरी सुने में आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी टुडे, आप ये करके देखना एक्सपेरिमेंट, ऐसा शुरुआत करो, मैं आज आपको एक कहानी बताने वाला हूँ, इट कैन बी अ सिंबॉलिक स्टोरी और अ हिस्टोरिकल स्टोरी बट इट हैज टू बी कथा, तो उसमें एक इंटरेस्ट आता है, तो आपको ऑडियंस इंटरेक्शन मिलता है ना, और एक लिसनिंग मिलता है, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगती है, ताकि तुम सारा चीज कवर कर रहे हो, उसका इमोशनल एस्पेक्ट भी कवर कर रहे हो, इतना भी ड्राई सब्जेक्ट होगा उसको भी आप थोड़ा सा स्पाइसी बना सकते हो, सो देयर स्टोरी टेलिंग विथ अ सेंस ऑफ ह्यूमर विथ सम फनी थिंग्स। हाँ, जैसे अभी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जैसे मैंने सब चेस ग्रैंड मास्टर्स को एक, तो आपने इंट्रोडक्शन में सुना होगा, सिखाया है आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम्स, ये मेडिटेशन ये सब, तो मैं उनका इंटरव्यू जब भी लेता हूँ तभी मैं उनको बोलता हूँ कि क्या पूछेगा तो इंटरव्यू में, जब डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू में क्या होगा, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई स्टोरी चाहिए, और इट मे नॉट बी रिलेटेड टू चेस, अभी आप इतने ट्रैवल करते हो, उससे कनेक्टेड स्टोरी सुनना है, आप कोई रशिया जा रहे थे, उधर फ्लाइट में क्या हुआ, उससे क्या होता है, एक पर्सनालिटी से कनेक्ट फील होता है, पर्सनालिटी से पहले कनेक्ट फील होता है, फिर सब्जेक्ट से कनेक्ट फील होगा, दिस इज हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स, व्यक्ति से जब भी कनेक्शन होता है, फिर वो व्यक्ति ने क्या काम किया है, किस सब्जेक्ट में क्या, उससे भी अपने आप एक इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। तो ये सेकंड चीज है अबाउट डिलीवरी ऑफ नॉलेज एंड हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग विदाउट स्टोरीज, विदाउट स्टोरी टेलिंग, वेदर इट इज अकाउंट्स और इट इज साइंस और इट इज एनीथिंग, इंटरेस्टिंग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। तीसरी, एक तो है आपका डोमेन नॉलेज, दूसरा है डिलीवरी ऑफ द नॉलेज, जिसमें मैंने आपको एक टिप दिया कथा स्टोरी टेलिंग का, और तीसरा है जो बहुत सारे लोगों ने मेंशन किया, वो पर्सनालिटी प्लेजेंट था, हमारे टीचर जो प्रेजेंट थे, जो टीचर नहीं अच्छे लगते थे उसमें बहुत चिल्लाते थे, इम्पेशेंट थे, फ्रेंडली नहीं थे, अप्रोचेबल नहीं थे, तो तीसरा है तुम्हारा प्रेजेंस। फर्स्ट टू थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी क्वालिटीज, थर्ड इज आपका प्रेजेंस, आप देखने से अप्रोचेबल लगते हो, आपने मुंह भी नहीं खोला अभी तक, आप सिर्फ खड़े हो बस स्टेज पे, और अगर आप कोई 50 लोग आपको देखें, क्या लगता है ये इंसान खुश है या टेंशन में है, ये इंसान फ्रेंडली है कि अनफ्रेंडली है, ये इंसान के साथ ऐसा लगता है कि मैं इमीडिएटली जाके बात कर सकता हूँ, अगर मेरे को कुछ क्वेश्चन आया, डाउट आया, तो ये सर को मैं पूछ सकता हूँ क्या, कितने लोगों को लगता है कि मैं आराम से पूछ सकता हूँ, मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे और मेरे को आंसर मिलेगा, तो ये अप्रोचेबिलिटी एंड क्रिएटिंग द स्पेस टू मेक मिस्टेक्स एंड इवन आस्क सम स्टूपिड क्वेश्चंस, ये टीचर के प्रेजेंस को बहुत एनहांस करता है, isn't it? So yeah, body language should make the audience comfortable, so body language also, and then we are going to go from more subtle, ये हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वाइब्रेशंस, वाइब्स, देखो अभी बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ये बोलने लगे, सब कुछ एवरीथिंग इज जस्ट अ वाइब्रेशन, ये एटम मॉलिक्यूल्स, ये पूरा वर्ल्ड इज नथिंग बट, आप एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओगे तो सब कुछ इज लाइक अ वाइब्रेशंस, इज ऑल वाइब्रेटिंग, तो और हर व्यक्ति के वाइब्रेशंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और वो वाइब्रेशंस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मन की स्थिति के ऊपर डिपेंड करते हैं, स्टेट ऑफ माइंड। देखो आप किसी के घर में जाते हो और उस घर में कोई झगड़ा हो गया है, ठीक है आपको नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन आप घर के अंदर जाते हो, उसमें घर में कुछ फाइट हो रहा है, आप घर के अंदर बैठते हो, आपको फील होता है टेंशन, वाइब्रेशंस फील होते हैं ना, वो ऐसा लगता है वहां से निकल जाए, थोड़ा स्ट्रेस फील होता है, पूरे तनाव, पूरे वातावरण में वो तनाव फैल जाता है,
तो हम बहुत पावरफुल है। मैं यहाँ बैठ के मेरा सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है फिजिकल एग्जिस्टेंस। मैं जो मन की स्थिति के हिसाब से मेरे इमोशंस जो है अभी मेरे विचार जैसे मैं पूरे इस रूम के वाइब्रेशंस को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। यस और नो? और एज टीचर्स ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप जैसे वातावरण बनाओगे वैसे नॉलेज लर्निंग होगा, वैसे आपको रिसीव किया जाएगा। तो श्री श्री रविशंकर जी बोलते हैं यू कन्वे मोर थ्रू योर प्रेजेंस देन थ्रू योर वर्ड्स। शब्दों से ज्यादा आपकी मौजूदगी से आप ज्यादा लोगों तक पहुंचते हो, ज्यादा चीजें कन्वे करते हो हम। तो अभी बाकी के चीजें आप हासिल कर सकते हो, हाँ, नॉलेज हासिल कर सकते हो, टीचिंग स्किल डेवलप कर सकते हो, लेकिन ये वाइब्रेशंस का क्या करें? वाइब्रेशंस कहीं बाजार में जाके मिलते हैं क्या? 5 किलो अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशंस चाहिए मेरे को। नहीं होते। तो दैट इज वेयर आर्ट ऑफ लिविंग कम्स इनटू प्ले। देखो क्या होता है, दो चीजों से वाइब्रेशंस बनते हैं। एक है हमारी मन की स्थिति क्या है उस वक्त, हम कितने फ्री है, कितने स्माइलिंग, और दूसरा है हमारे एनर्जी लेवल्स। तो पॉजिटिव तो रखना चाहिए अपने को, लेकिन क्या होता है एनर्जी लेवल, उसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं प्राण शक्ति, सटल लाइफ फोर्स एनर्जी। सूक्ष्म स्तर पे जो एनर्जी चलती है ना उसको बोलते हैं प्राण शक्ति। वो प्राण शक्ति जब एकदम कम होती है तभी देखो क्या होता है। हाँ, प्राण शक्ति कम होती है, आप सिंपल बात बोलते हो, आप थक गए हो, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप घर से भी आपके क्लासेस चल रहे होंगे, जूम पे, इस पे उस पे, फिर घर का काम बढ़ गया है, तो तभी थकान होती है, शरीर मन थक जाता है। तब देखो क्या होता है, विचार कैसे आते हैं, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, चिड़चिड़ होते हैं, छोटे छोटे चीजों से गुस्सा आने लगता है, इरिटेशन होता है, एनर्जी लेवल लो होती है ना, तभी कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता, पॉजिटिविटी भी नहीं रहती। हम चाहते हैं पॉजिटिव रहे लेकिन होता नहीं है। ये एक हेल्पलेसनेस फील होता है लाइफ में, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। तो एनर्जी लेवल को बढ़ाना ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारा। खाने से सोने से एनर्जी मिलती है, इसलिए हमारे वर्कशॉप का नाम है मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप। ये मेडिटेशन और ब्रेथ ये क्या है, ये तीसरा और चौथा सोर्स ऑफ एनर्जी है। खाना और सोना काफी नहीं है, वो तो सब लोग करते हैं, ज्यादा खा के ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती। अच्छा किसी, हाँ, ज्यादा खा के ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती। तो खाना, क्या खाना, कैसे खाना, कितना खाना, सब इंपॉर्टेंट है। दूसरा है स्लीप। हाँ, 7-8 घंटे की अच्छी नींद हो तो भी एनर्जी लेवल मेंटेन होती है, लेकिन ये दो चीजें काफी नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ सोर्स ऑफ एनर्जी को पूरी तरह से हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तीसरा एनर्जी का सोर्स क्या है, ब्रेथ। फिर आपको लगेगा यार सांस तो मैं ले ही रहा हूँ उसमें क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें क्या करना है? अच्छा, लेकिन सांस ले रहे हो, दिन में 28,000 बार हम सांस लेते हैं, लेकिन पता है हमारी, जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी होती है ना वो कम कम होते जाती है। छोटे बेबी को देखो, वो जो भी सांस लेता है पूरा उसका पेट फूलता है, ठीक है। हमारी सांस सिर्फ 30% होती है लंग कैपेसिटी। 30% लंग कैपेसिटी में प्राण शक्ति कैसे होगी? देखो छोटे बच्चे को देखा है ना, एनर्जी लेवल क्या होती है उनकी, पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एनर्जी खत्म ही नहीं होती। 3-4 लोग बेचारे उनको संभाल संभाल के थक जाते हैं, वो बच्चा फिर भी दौड़ता रहता है रात को 11 बजे भी, उसको बोलता है कब सोएगा ये है कि नहीं? तो बच्चों में एनर्जी ज्यादा रहती है, लंग कैपेसिटी भी उनकी 100% होती है। जैसे हम बड़े हो जाते हैं, कुछ तनाव की वजह से हमारा ब्रीदिंग इफेक्ट होने लगता है, हमको पता भी नहीं रहता है। ये जैसे गाड़ी चला रहे हैं, टायर में सिर्फ 30% हवा है, ऐसा है, फिर वो गाड़ी कैसे चलेगी? वैसे शरीर को चलाते रहते हैं हम। हम्म, मैं कॉलेज में ही पूछ रहा था, दिल्ली के कॉलेज में, कि सुबह उठ के कितने स्टूडेंट को पूछ रहा था, सुबह उठने के बाद कितने देर तक ऐसे एनर्जेटिक और फ्रेश रहते हैं?
एक स्टूडेंट बोला कॉलेज पहुंचने तक। उसके बाद कुछ हवा ही नहीं है टायर में, बेचारा क्या करेगा। तो लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम ये जो प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ये सब ब्रीदिंग टेक्निक्स है, इससे क्या होता है, लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, देन व्हाट हैपेंस, एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, प्राण शक्ति बढ़ती है। प्राण शक्ति जैसे ऊपर हो जाएगी ना, वैसे ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आ जाती है माइंड पे। हाई एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिविटी, लो एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिविटी। तो प्राण शक्ति बढ़ गई, माइंड पॉजिटिव हो गया, वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो गया। दिस इज द थर्ड सोर्स, ब्रेथ। और चौथा सोर्स है मेडिटेशन, which means which gives us क्या, a calm and relaxed mind, pleasant state of mind। देखो आपने जो बोला, आपको जो टीचर्स पसंद आए उनका प्लेजेंट पर्सनालिटी था। तो कुछ लोग का ऑलरेडी प्लेजेंट होगा, लेकिन उसको और एनहेंस कर सकते हैं लाइफ में। हाँ, तो प्लेजेंट पर्सनालिटी इज कम्स फ्रॉम अ रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड। मन शांत हो जाता है। तो शांत मन का क्या है, देखो मन का स्वभाव क्या है ना, वो ऐसे इतना चंचल है। अभी भी आप बैठे हो, सुन रहे हो, लेकिन फिर भी इधर उधर भागता जा रहे हो ना। कभी भूतकाल में जाता है, ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, ब्ला 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 ब्ला। पास्ट के बारे में सोच सोच के पश्चाताप करेगा या गुस्सा करेगा, या भविष्य की चिंता में फंसा रहेगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर का एंजाइटी और पास्ट का रिग्रेट। इसमें मन बहुत ज्यादा फंसा रहता है। वो वर्तमान में रहता है ना, तभी वो एक काम रिलैक्स स्टेट में रहता है, हैप्पी स्टेट में रहता है। लेकिन मन वर्तमान में बहुत ज्यादा कम रहता है, वो ज्यादा करके उड़ता ही रहता है इधर उधर इधर उधर। ये सुनो, चंचल म्हणतात ना, एकदम चंचल। और ये बेसिक स्किल है, या एजुकेशन में बोलूंगा, ये अभी हमारे समाज में, देश में, सिस्टम में इसको मेन स्ट्रीम में नहीं किया है, इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ टू यूज योर ब्रेथ, हाउ टू यूज योर लंग कैपेसिटी, उसके ऊपर जो पूरा हमारा जीवन चल रहा है, हम जिंदा हैं सांस की वजह से। और सब कुछ कर रहे हैं, खुश रहने के लिए कर रहे हैं, लेकिन खुशी तो मन को वर्तमान में आएगा तभी तो मस्त रहेंगे ना, खुश रहेंगे। तो कैसे रहेंगे, ये गाइडेंस की, ये सीखने की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ कि आप, इट इज वेरी अमेजिंग इनिशिएटिव टेकन बाय दिस प्रगति कॉलेज एंड ऑल द टीचर्स हियर, दैट हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि चलो लेट्स लर्न दिस। तो उसमें दो चीजें काम करेगी, प्राणायाम, आयाम मतलब उसका डायमेंशन, प्राण का डायमेंशन, ओके। उसको कैसे चैनलाइज करेंगे पूरे शरीर में, लंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे, हम थोड़ा सा एक टेक्निक सीखेंगे अभी, एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे और एक मेडिटेशन भी करेंगे। तो मेडिटेशन इज द की, ध्यान। तो ध्यान क्या है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते मैं हम लोग थोड़ा सा करेंगे मेडिटेशन, ठीक है। फिर हम लोग अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे ना मेडिटेशन के बाद, तो हम लोग लेंगे उसके बाद में। तो ध्यान क्या है, ध्यान मतलब फोकस, कंसंट्रेशन, न मतलब नहीं नहीं करना है फोकस कंसंट्रेशन। ध्यान मतलब विश्राम। देखो फोकस करने के लिए आपको श्रम की जरूरत है ना, विश्राम करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ रिलैक्स करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में जो मेडिटेशन करते हैं हम लोग सारे शरीर से लेके, मन से लेके माइंड को रिलैक्स स्टेट में लेके जाते हैं। तो उसमें क्या है, हम फोर्स नहीं कर सकते माइंड को रिलैक्स होने के लिए, फोर्स करेंगे तो बिल्कुल उसका उल्टा होगा। हाँ, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक, थोड़ा सा we'll just do some little bit of, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप योगा, मतलब कुर्सी पे बैठे बैठे जो योगा कर सकते हो वो हम थोड़ा सा करेंगे। फिर एक ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे, लंग कैपेसिटी को थोड़ा सा, लंग्स को पूरा ऑक्सीजनेट करेंगे। और फिर एक 7-8 मिनट ना हम एक हल्का सा, एक छोटा सा ध्यान करेंगे। मतलब ध्यान करेंगे मतलब क्या, विश्राम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर भी है, वहां पे
आराम से बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली, और सब लोग ये करें मेरे साथ। पहले ये जो पाम है उसको सर के ऊपर रख के ऐसे गोल गोल घुमाएं इसको, थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे, थियरी काफी हो गया। हाँ, साइड से इसको मसाज, ये सब स्ट्रेस पॉइंट्स है, उसको रिलीज करेंगे थोड़ा सा हम लोग, जस्ट रिलीज। करो करो करो, ये सिर्फ सुन के कुछ नहीं होगा, सिर्फ करना पड़ेगा कुछ। आईब्रोज को मसाज करो। इज एवरीवन डूइंग? पता नहीं चला, सबके वीडियोस तो बंद है। कान को खींचो, तो लोग गलती करते हैं तो ये एक स्ट्रेस पॉइंट होता है। हाँ, कान को ऐसे नीचे खींचो, ये पनिशमेंट देते हो ना। कोई पता है यहाँ पे पॉइंट दबाने इम्यूनिटी भी बढ़ता है। हाँ, और अभी ये नकल से ना मसाज करो अपर जॉ को। आई होप एवरीवन इज डूइंग दिस, नॉट जस्ट वाचिंग द स्क्रीन। और लोअर जॉ को ऐसे करो। हाँ, वेरी गुड। अभी स्माइल करो, ये भी एक्सरसाइज है। स्माइल स्माइल स्माइल। अगर ब्रश किया है आज तो दांत भी दिखा सकते हैं। अच्छा, ब्रीद इन करके दोनों कंधों को ऊपर करो कान के पास, और खान और सांस को रोको, और ब्रीथ आउट। ब्रीद इन, होल्ड द ब्रेथ, और ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ा सा रोटेट करो, रिलैक्स। दूसरी दिशा में। हाँ, अभी हाथों को झटको, बस ऐसे सारा जो बेचैनी होता है शरीर में मन में वो सब ऐसे झटक दो। थोड़ा फास्ट झटको, फास्ट 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 फास्ट। हाँ, और रिलैक्स का। अभी हम एक ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे, सिर्फ इसके लिए अगर आप कुछ लोग वीडियो चालू कर सकते हो तो अच्छा रहेगा, हम देख सकते हैं आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। हल्की सी मुट्ठी ऐसे करो। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर, ऐसे करो तो कि हम देख सकते हैं आपका पोजीशन ठीक है क्या। हल्की सी मूठ अशी खंडों के पास, और मैं जब भी ब्रीद इन बोलूंगा ना तभी हाथ ऊपर जाएंगे और मुट्ठी खुलेगी, और सांस अंदर लेना है, और सांस छोड़ोगे वापस नीचे आएगा। एक बार करेंगे, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। सांस छोड़ो, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, और विश्राम करो। अभी और 2 राउंड करेंगे 10-10 बार, और आंखें बंद रख के करेंगे। अभी पूरे लंग्स को भरना है, अभी सांस अंदर लेके और बाहर छोड़े। सेकेंड राउंड फिर से करें, हल्की सी मुट्ठी कंधों के बगल में, सब जोश में करना है थोड़ा सा, ये सब साथ में करेंगे। ब्रीद इन आउट, 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 और विश्राम। आंखें बंद रखेंगे और विश्राम।
और आखिरी राउंड के इसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम के आखिरी राउंड के लिए पोजीशन ले, तैयार हो जाइए सब। फिर से करेंगे और एक लास्ट टाइम, थोड़ा जोश में करेंगे। सांस अंदर, बाहर, इन, आउट, 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 इन, आउट। और आराम से बैठ जाइए। आप बैक रेस्ट ले सकते हो जहां पर भी हो, और दोनों हथेलियां अपने घुटनों के ऊपर रख दो, हथेलियां आकाश की ओर। चलो विश्राम करेंगे। अपने आसन पे कंफर्टेबल हो जाइए, जैसे भी बैठे हो शरीर को कंफर्टेबल रखें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रख सकते हो, और आंखें बंद रहेंगे। आसपास घर वालों को बोलना कि 10 मिनट तक, अभी 8 7 8 10 मिनट तक आपको डिस्टर्ब ना करें। वातावरण में जो भी आवाजें सुनाई दे रही है उसके प्रति सजग हो जाए। सभी आवाजों को स्वीकार करें और विश्राम। और अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। प्रकृति से मिला हुआ एक सुंदर तोहफा है ये शरीर। ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम नेचर, आवर बॉडी। लेट्स ऑनर आवर बॉडी। शरीर का सम्मान करें। अपनी दाएं पैर के प्रति सजग हो जाए। राइट लेग, राइट फुट। हल्का सा ध्यान ले जाए बस अपनी दाएं पैर की तरफ। दाया घुटना, दाई जंघा और दाया कूल्हा। और पूरा दाया पैर। पुन्हा त्याचे लफडे होण्यापेक्षा जाऊ दे, घेऊन जाऊ दे त्यालाच बरं. बाया पैर, बाया घुटना, बाई जंघा और बाया कूल्हा। और पूरा बाया पैर।
जननेन्द्रिया, और पेट, नाभि प्रदेश, छाती, दायां हाथ, पूरे दाएं हाथ को विश्राम दे, एकदम ढीला छोड़ दे। बायां हाथ, एक सांस अंदर ले, और सांस छोड़ते छोड़ते पूरे दोनों कंधों को भी ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर शोल्डर्स। गर्दन, गला, चेहरा, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रख सकते हो। दोनों आंखें, मस्तिष्क और सिर की चोटी, टॉप ऑफ द हेड। एक गहरी सांस अंदर ले, और सांस छोड़ते छोड़ते पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। विश्राम। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए। इस वक्त मन में जो भी विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, सभी का स्वागत करें। ना रोके, ना टोके। सभी विचारों को स्वीकार करके हम विश्राम ही करेंगे। फिर एक गहरी सांस अंदर ले, और बाहर छोड़े। रिलैक्स। अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं।
इस वक्त जो भी भावना उठ रही है, सुखद भावना हो या असुखद भावना, जो भी है स्वीकार करके हम विश्राम करें। हे यांना ते टाकून लागत नाही यांना. फिर एक सांस अंदर लें और एकदम धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें, जैसे अपने आप हो रहा है। तुम ही प्रेम, खुशी और शांति हो। हम अपने ही स्वभाव में कुछ क्षण विश्राम करेंगे। और कुछ क्षण के लिए कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ करना है, ना कुछ जानना है, केवल विश्राम। रूपा समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। फिर एक बार अपने भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं, अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं, अपने शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं और फिर एक गहरी सांस ले अंदर और धीरे धीरे सांस छोड़े और अपना समय लेते हुए आराम से आंखें खोल सकते हो। हाँ, कैसे लगा आप चैट पे बता सकते हो इस वक्त कैसे लग रहा है, मन की स्थिति कैसी है।
जिन्होंने भी ध्यान किया पूरा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? शांत लग रहा है, फीलिंग फ्रेश, रिलैक्स, फुल बॉडी रिलैक्स हो गया, पीसफुल, मस्त, काम, फ्रेश, वंडरफुल, मस्त लग रहा है। अच्छा, वेरी नाइस फीलिंग, ऑसम, बेटर, पीसफुल, आनंदमय। देखो जस्ट सिर्फ 8-10 मिनट हमने किया तो हमारे ये मेडिटेशन और ब्रेथ में बहुत पावर है। हाँ, तो पहले मैंने अपने आप कुछ कुछ ट्राई करता था, ये आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स, लेकिन वो मेडिटेशन होता नहीं था। फिर मेरे फ्रेंड ने बोला, अरे तू ये सुदर्शन क्रिया सीखेगा ना, सुदर्शन क्रिया करेगा, तो वो ब्रीदिंग टेक्निक है सुदर्शन क्रिया, एक श्री श्री रविशंकर जी ने बनाई है 1981 में। वो ब्रीदिंग टेक्निक करने के बाद ना मन एकदम स्वाभाविक रूप में एकदम ऐसे ध्यान के एकदम रिलैक्स स्टेट में चला जाता। फिर क्या होता है, कुछ क्षण के लिए भी, तो बोलते कल्प कोटि विश्राम, कुछ क्षण के लिए भी उस स्थिति में जाएगा, पूरा दिन में जितना भी स्ट्रेस सब खत्म हो जाता है। फिर अगले दिन आप फ्रेश होते, जैसे नहाते हैं ना रोज, वैसे मन का भी एक हाइजीन के लिए अच्छा है। गुरुजी बोलते हैं, यू ब्रश एवरी डे फॉर डेंटल हाइजीन, यू मेडिटेट एवरी डे फॉर मेंटल हाइजीन। तो सुदर्शन क्रिया मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ऑनलाइन हमारे ये वर्कशॉप्स हो रहे हैं जिसमें हम सुदर्शन क्रिया, ब्रीदिंग टेक्निक और मेडिटेशन सिखा रहे हैं। अभी जैसे 1st to 4th एक कोर्स है, 2 घंटे का कोर्स है, ये 4 दिन, तो 2-2 घंटे 4, 8 घंटे में आपको एक जीवन के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज मिलती है, जो आपका स्ट्रेस के अगेंस्ट के लिए सबसे बड़ा शस्त्र मिलेगा आपको। तनाव के अगेंस्ट लड़ने के लिए वो तनाव पूरा तरह से खत्म कर देता है। तो मैं पिछले 22 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ सुदर्शन क्रिया, ओके, और उससे ब्रेन अलर्ट रहता है, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स ऑल ओवर द कंट्री, बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट पूरे दुनिया में ये सुदर्शन क्रिया के ऊपर रिसर्च करके बहुत ही ज्यादा उनको कुछ कुछ फाइंडिंग्स मिले हैं, और वो कैसे काम करता है। और इस समय में ये कोरोना वायरस सब हो रहा है, इसमें देखो अभी तो जैसे केसेस तो चलते रहेंगे, ये कंटेजियस है कोरोना वायरस। मेन चीज इसमें क्या आती है अभी, हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति। इम्यूनिटी अगर पावरफुल है ना, तो हम बच गए, हम बचे रहने वाले हैं इसमें, isn't it? अगर आपका डाइट अच्छा, लाइफस्टाइल अच्छा, आप ध्यान करते हो, नर्वस सिस्टम में स्ट्रेस नहीं है, ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हो, सुदर्शन क्रिया करते हो, फिर इट विल बी अ वेरी गुड शील्ड, एक अच्छा सा कवच बनेगा ये अगेंस्ट ऑल दिस, नॉट जस्ट कोरोना वायरस, कोई भी प्रॉब्लम हो आपका, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बीमार पड़ना, ये रोग प्रतिकार शक्ति जिसकी अच्छी होती है उसकी हेल्थ फिर अच्छी टिकी रहती है। तो एक वीडियो है ब्रूमा, वो कैन यू शो दैट? Yes, yes, भैया. We'll just play. Yeah, I'll do it. One second. हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को समझने के लिए हमें उसे हमारे देश की आर्मी से कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे आर्मी में सोल्जर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको गन्स और एम्यूनिशन दिया जाता है, लेकिन सब कुछ सही तरीके से प्रोवाइड करने के बाद भी अगर अटैक के समय उनका लीडर पैनिक हो जाए और सही इंस्ट्रक्शंस ना दे पाए, तो ऐसी आर्मी कभी कोई जंग जीत सकती है क्या? नहीं। ठीक उसी तरह हमारी बॉडी के भी सोल्जर्स हैं। वो है हमारे वाइट ब्लड सेल्स, हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, हमारे लिम्फ नोड्स एक्सेट्रा। और इन सबको भी ठीक से हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए करेक्ट सिग्नल्स मिलने बहुत जरूरी हैं। लेकिन अगर हमारा सुप्रीम कमांडर, हमारा लीडर, नर्वस सिस्टम वो स्ट्रेस में आ जाए, तो ये सब सिग्नल्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और हम बहुत सारी बीमारियों और इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाते हैं। एम्स और निमहांस 2 बड़े इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, जिन्होंने इस साइकोसोमैटिक एसोसिएशन यानी कि मन और शरीर में
क्या रिलेशन है, इस पे बहुत रिसर्च किया है और उन लोगों ने पाया कि सुदर्शन क्रिया मेडिटेशन जो कि आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा सिखाई जाती है, उसे करने से स्ट्रेस हार्मोन दैट इज कॉर्टिसोल ऑलमोस्ट 40% तक ब्लड में कम हो जाता है। इतना ही नहीं, मूड एलिवेटिंग केमिकल्स लाइक सेरोटोनिन, डोपामिन वो बढ़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर भी टुवर्ड्स नॉर्मल होता जाता है। ऐसा कहा गया है कि ये शरीर दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। यहाँ पे आपकी जरूरत की सारी दवाइयां अपने आप बनती रहती हैं अगर आप उसे स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दे तो। रिसर्च के अलावा अगर मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस की बात करूं तो आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले मैंने सुदर्शन क्रिया मेडिटेशन सीखी थी और पिछले 10 साल में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा है। मेरी इम्यूनिटी, मेरी एनर्जी लेवल्स, मेरी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। सो एंड में मैं आपको फिर से रिकैप करना चाहूंगी किन बातों के बारे में। एक तो अपने मन और शरीर के साइकोसोमैटिक एसोसिएशन को समझिए और ये जानिए कि सुदर्शन क्रिया मेडिटेशन जैसी टेक्निक करने से आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ होंगे। और ऐसे डिफिकल्ट समय में जहां इम्यूनिटी की इतनी सख्त जरूरत है, अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, वेरी नाइस। तो आपके अगर कुछ एक दो क्वेश्चंस अगर है, किसी के प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी और फैकल्टी के लिए भी दोनों हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। ये 17 प्लस जो भी है, 17 ईयर्स कंप्लीट जिनके हुए हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है, ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप। तो ये सीख सकते हैं हम। 1 to 4 जून कोर्स है। तो कृपा करके ना प्राणायाम और ध्यान, ये सुदर्शन के सीखिए, प्राणायाम और ध्यान को अपने लाइफ का रूटीन में लेके आए। तो वातावरण भी शुद्ध रहेगा, पर्सन आपकी प्रेजेंस में एक पॉजिटिविटी आएगी, आपकी इम्यून सिस्टम। इसका डोनेशन है 1200 रुपीज। तो आर्ट ऑफ लिविंग अभी इस समय में 2 चीजें कर रहे हैं। तो पूरे जनता में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं और हमारे हम लोग जो भी फंड रेजिंग करते हैं उसे हम फ्री मील्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त लेवल पे पूरे देश में हो रहा है। अभी 25 लाख फैमिलीज को जो डेली वेज अर्नर्स है, जिनके जॉब ऑफ गए हुए हैं लॉकडाउन के वजह से, उनको हम खाना दे रहे हैं। हाँ, तो अभी 8 करोड़ मील्स हमने सप्लाई किए हैं पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हर जगह। तो ये एक डिपार्टमेंट है हमारा जो सेवा का कार्य करता है। और दूसरा है ये जो एजुकेशनल वर्कशॉप्स होते हैं हमारे। व्हाट इज द करेक्ट टाइम ऑफ डूइंग मेडिटेशन, हाउ टू डू इट एट होम। आप अगर कोर्स नहीं गए तो कोर्स करेंगे तो आपको सब बताया जाएगा। और सुबह का टाइम बेस्ट है मेडिटेशन के लिए, दोपहर का भी। 3 समय होते हैं, संध्या बोलते हैं उसको, जब रात दिन में बदल रही है। संध्या मतलब कनेक्शन पॉइंट। तो अर्ली मॉर्निंग सूरज जब सर के ऊपर है, दोपहर का लंच के पहले, और शाम का टाइम सनसेट टाइम। ये 3 समय कोई भी प्रार्थना, ध्यान, प्राणायाम के लिए सबसे अच्छे हैं। और क्या, अर्ली मॉर्निंग बेस्ट या सनराइज के टाइम अगर ध्यान करोगे सबसे अच्छा। और कोई क्वेश्चंस है? प्लीज टेल, कैन समवन रीड, एक मिनिट, आई जस्ट। सर, आपने आपल्या माइंड आणि विचार कंट्रोल केलं तरी प्रॅक्टिकल लाईफ तर जगतोस, मग स्वतःला आणि माइंड कंट्रोल कसं ठेवू शकतो सिच्युएशन वाइज? हाँ, देखो क्या है, जैसे हम लोग ये प्राणायाम और ध्यान व्यान करने लगते हैं ना, तो देखो गुस्सा आता है, सबको आता है, लेकिन कितना आता है कितनी बार आता है और कितने देर में खत्म हो जाता है, ये भी पॉइंट्स है ना इम्पोर्टेंट। जो प्राणायाम और ध्यान करते हैं एक तो आएगा तो भी कम आएगा, दिन में 10 बार आता है तो दिन में 2 बार आएगा, है कि नहीं? और आएगा तो ऐसे बोलते हैं, पानी में अगर लकीर ड्रॉ करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, कितना टाइम रहता है, उतना टाइम गुस्सा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। गुस्सा, हम लोग क्या होता है ना, गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा ही रहते हैं।
फिर वो पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, फिर 2-3 दिन बाद, 1 साल बाद भी उसको याद करते हैं, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा किया था। वो कंटिन्यूअस अपने अंदर उसको घर बना लेता है वो प्रॉब्लम करता है। हुँ। Pranayam is the best for increasing energy and freshness. Yes, very, very important. Or kindly how to guide, how to keep positive and stable mindset for a long time. There's no other way other than meditation. Daily meditation, preferably twice a day. हाँ, स्टमक इनहेल जब भी करते हैं तो पेट फूलना चाहिए और एक्सहेल करते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। Anything else? Thank you. Welcome. कुछ लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि हमने कोर्स कर चुके हैं ऑलरेडी। वेरी गुड। वो आप भी अपना अनुभव बता सकते हैं, लोगों को और इंस्पायर करें। लेकिन हमको हमारे देश में अभी पूरी तरह से प्राणायाम और ध्यान का एक लहर उठाना है, ताकि ये डिप्रेशन, सुसाइड्स, पता है आप टीचर्स है तो आपको बताना चाहिए 2018 में सिर्फ 1 साल में 10,000 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। 10,000 हमारे देश में। इसका मतलब एंगर पे किसी का ये नहीं है। तो ये सब प्राणायाम करने से ये डिप्रेशन, दो टेंडेंसीज है। एक तो है ये डिप्रेशन, सुसाइड, कुछ नहीं करना है, ये नहीं, और दूसरा है एग्रेशन और एंगर, वायलेंस। दोनों में फंसते हैं अगर प्राणायाम और ध्यान, अध्यात्म नहीं है जीवन में। तो दोनों के बीच में हमको लाना है जनता को, है कि नहीं? तो आप अगर करेंगे तो आप स्टूडेंट्स को भी इंस्पायर कर सकते। कितने सारे कॉलेजेस में मैं तो ज्यादा करके कॉलेजेस में सिखाता हूँ। कितने सारे कॉलेज से XLRI जमशेदपुर सबसे टॉप MBA कॉलेज है हमारे देश का, जमशेदपुर। उन्होंने जब भी वो कोर्स किया, टीचर्स ने, फैकल्टी ने, वहाँ पे डायरेक्टर ने, वहाँ का जो भी डीन थे वो बोले तो यार ये तो करिकुलम में होना चाहिए। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो भी है पैसे का और टाइम का, तो लाइफ टाइम के लिए आपको कुछ मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने फीस में ही वो व्हाटएवर 1200-1500 वो फीस में ही ले लेते हैं, वो MBA का जो फी होता है। और उसमें जैसे स्टूडेंट आता है कॉलेज में, उसके इंडक्शन प्रोग्राम में ही आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करा देते हैं सारे स्टूडेंट्स को। बोले कि ये तो पार्ट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। और ये उन्होंने शुरू किया 2010 में। 10 साल हो गए, उनका आर्ट ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ करिकुलम बन गया, isn't it? तो ये कोर्सेज रेगुलरली मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, एम्स में, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, यहाँ पे रेगुलरली प्रोग्राम्स होते हैं। ताकि यहाँ के फैकल्टी ने जब भी कोर्स प्रोग्राम किया, उनको पता चला ये तो स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी सोचते थे ये जब हम स्टूडेंट्स थे हमको मिलता था तो कितना अच्छा होता। सारे स्टूडेंट्स ने ये कोर्स करने को फिर और इंस्पायर कर सकते हैं आप। और घर में भी सबको, हर घर में ये स्ट्रेस फ्री वातावरण बनाना जरूरी है कि नहीं? तो छोटी छोटी बातों में लोगों का पूरा पीस ऑफ माइंड खराब हो जाता है। हाँ, पुअर पीपल, हम लोग अभी सारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए फ्री कोर्सेज कराते हैं। सब हमारे फ्री कोर्सेज भी होते हैं सब जगह। अभी मैंने नर्सेस का फ्री कोर्स लिया सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के संडे को। उसमें से कोरोना वायरस पेशेंट थे जो रिकवर हुए, उन्होंने सुदर्शन क्रिया वगैरह किया तो उनको बहुत अभी बढ़िया लग रहा है। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने सारे एक ये कर दिया, आज ही लेटर मिल गया हमको, इस जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, मेडिकल स्टाफ, सबके लिए हम कोर्सेज कर रहे हैं। मेडिटेशन दिन में 2 बार करोगे तो पूरे दिन उसका इफेक्ट रहेगा। So, Bhaiya, someone has asked that it should be compulsory subject in school and college. हाँ, definitely. So we have one Shelu Engineering College where हाँ. it is mandatory for all the students and faculty. By the starting of the year, before actual study starts, everybody has to compulsorily go through this 4-day session.
बहुत सारे अभी MOU साइन कर रहे हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, ताकि उसको करिकुलम में ही इंडक्शन प्रोग्राम के तौर पे वो ले लेते हैं। अभी नया साल शुरू होगा तो हम भी ये कर सकते हैं मुंबई में। Someone has asked how long should we maintain a state of meditation ideally to achieve peace of mind? हाँ, I should say twice a day you do uh, around 20 minutes in the morning, 20 minutes in the evening. दिन में 2 बार अगर करोगे तो पूरे दिन तक उसका इफेक्ट रहेगा। ठीक है, सो आई थिंक बाकी की चीजें अभी तो आप जैसे आगे बढ़ते रहोगे, it would be nice if you all do the participate in the program also. Rupali ma'am, would you like to say something? Yes, madam. Now the session, we have to ask principal ma'am whether we have to conclude this one. Yes, madam. Jyoti ma'am. We can conclude. Before concluding, I would like to share my own experience about Sudarshan Kriya within 2 minutes. Okay. Nice, amazing. I was suffering from a problem of vertigo for almost 7 years. And in 2002, after I get married, I changed my job also. So on both the fronts, college में भी और घर पे भी पूरा नया atmosphere था. And that vertigo problem got increased also at that time. And my friend suggested me. Hello, can you hear me? Yes, yes. हाँ, मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि आप सुदर्शन क्रिया उल्लासनगर में हो रहा है, उधर आप जाके ये कोर्स कंप्लीट करो. So I completed that course, and by the end of the course itself, I started feeling very well. So वर्टिगो का जो 7 साल से मेरा प्रॉब्लम था, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एवरीथिंग आई हैव ट्राइड फॉर, लेकिन कुछ भी उसमें फर्क नहीं था. लेकिन सुदर्शन क्रिया का कोर्स करने से और उसको बाद में प्रैक्टिस करने से आफ्टर 2002 टिल टुडे आई डोंट हैव दैट मच ऑफ प्रॉब्लम. अभी तक वो वर्टिगो का प्रॉब्लम मुझे नहीं आया है. सो आई ऑलवेज रिकमेंड एवरीबॉडी, सबको मैं बोलती हूँ कि सुदर्शन क्रिया करते जाओ, इट इज रियली बेनिफिशियल. सो वेरी नाइस सेशन सर. रश्मिन सर, आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया. थैंक यू. पीस ऑफ माइंड इज नीड ऑफ द आवर हो गया है अभी. सो एवरीबॉडी घर पे रह के जो मन में ख्याल आते हैं कि कहीं हमें कोरोना हो जाए, कुछ बाहर नहीं जा सकते, घर में बैठ के इरिटेट हो रहे, तो ये सब सिचुएशन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऐसे सेशन कंडक्ट होने चाहिए. और आपने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने जो प्रगति कॉलेज को ये हेल्प किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया देती हूँ आपको. थैंक यू वेरी मच सर. And now Leena madam will give formal vote of thanks before ending the session. Leena madam. Yes, thank you, madam. A warm and graceful afternoon to one and all. It's my privilege to propose vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this event successful. I thank our management committee and our principal, Dr. Jyoti Pahane ma'am, for their great support. I thank resource person, Mr. Rashmin Phulekarji, who is International Art of Living faculty and trainer expert. His experience that you all have due to Phulekarji. So want to thank Mr. Jatin and Ms. Bruma for technical support. I request all of you to fill the feedback form. The link will be provided in the group, WhatsApp group. There are 2 groups, and with the permission of Principal Madam, I would like to conclude the webinar. Thank you. Have a great day. Okay. Thank you very much. Leena madam. Leena madam. Yes, yes. Please put the link in chat box. Okay. Feedback link. Okay.
Okay, so thank you very much, and I would like to take leave now. Okay, thank you, And I sir. also enjoyed wonderful session with all of you. Enjoyed interacting with all the teachers. Thank you so much, sir. Yes, Thank welcome. you. Hope to meet you in person also sometime. I'm also from Mumbai. I stay in Ghatkopar. Yes, definitely, sir. We Yes, will have the patience for the students. yes, yes. Okay. So can we have a feedback link here? Or you want to put it on a WhatsApp group? How is it, Rupali ji? Hello, Rupali ji. Can you unmute? Can you unmute yourself? Yes, yes. I have unmuted. So, are you sharing the the feedback link here, or is it on the WhatsApp group that you have shared? Okay. Yes, we will see send here.